Assalamu alaikum student. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Biology grade 9, section number 2, lecture number 2, lesson number 4, topic cell and tissues. Before we will start our lecture, student write down important instructions and please follow them. Student, bring your biology book. Open it and write day and date properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. Student, open page number 55. Student, open book unit 4, page number 55. Let's read the lesson attentively. Student, in the last lecture we will discuss about the microscopy and the different types of the microscope. Now we will discuss about the contribution of the different scientists in the formulation of the cell theory. So please write down a journal question जो हमने short question के तौर पे different scientists के लिए use करना है, ठीक है? Write down the contribution of Aristotle in the formulation of cell theory. आगे फिर जो साइंटिस्ट आएंगे आप उसमें एरिस्टोटल की जगह साइंटिस्ट के नेम जो है वो चेंज कर लेंगे. ओके, नाउ पेज नंबर 55. Aristotle present the idea that all the plants and animals are somehow related. Later this idea gave rise to the question that is there a fundamental unit of the structure shared by all the organisms. ठीक है, 17th सेंचुरी तक जब तक माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट नहीं हुई थी तो तब तक जो है मतलब कोई भी नहीं जानता था कि सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हुए, मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल. ओके, सो राइट क्वेश्चन ऑन सेकेंड लाइन. Write down the contribution of Aristotle in the formulation of the cell theory. And the answer of this is second line. Aristotle presented the idea that all the plants and animals are somehow related. Please आप अंडरलाइन कर लें या मतलब मार्क कर लें इसको. ओके, नाउ we will discuss about the Robert Hooke. Cells were first described by the scientist Robert Hooke in 1665. ठीक है, he used his light microscope scope to examine the slice of the cope. Hooke observed a honeycomb of the tiny empty compartments and he called the compartment in the cork as the cellula. His term has become to us as the cell. Okay, right question on second paragraph. Write the name of the scientist who used the word cell for the first time. Okay, and the answer of this is Robert Hooke. और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बन सकता है वही वाला, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी. उसमें आप इसका सारा वर्क ये जो पूरा लिखेंगे, ठीक है. द आंसर ऑफ दिस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ एंड एंड ऑन द फोर्थ लाइन, ठीक है, सॉरी थर्ड लाइन तक, ठीक है. हिज टर्म से पहले तक आपने इसको क्लियर कर देना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्क वाज डन बाय आफ्टर फ्यू ईयर्स. Leeuwenhoek observed tiny organisms from the pond water under his microscope and he called them as the animalcules. ठीक है, अब आपने जो है इसमें लिख देना राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ Leeuwenhoek इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी. ठीक है, या मतलब इसमें ये भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं बस ये ठीक है. ओके, डन हो गया. आपके 2 पैराग्राफ्स जो है वो डिस्कस हो गया. नाउ वी विल डिस्कस पेज नंबर 56. द अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क डन बाय द बायोलॉजिस्ट इन 1909, Lamarck. जी, डी Lamarck proposed that the nobody can have life if its parts are not cellular टिश्यू और आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू. मतलब कि कोई भी चीज़ जो है उसमें ज़िंदगी या लाइफ नहीं होगी अगर उसके जो है वो सेलुलर पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट ना हो. ठीक है,
अच्छा जी, देन इन 1831 अ ब्रिटिश botanist Robin Brown discovered nucleus in the cell. Write down the question on this. Who discovered nucleus in the cell? And the answer of this will be the third line on पेज नंबर 56. आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इन 1831 अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल. ओके. अच्छा जी, ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं लिखा था, वो आप लिखे हैं. राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेनमार्क इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी. ठीक है, तो उसमें फिर आपने सेकेंड लाइन ऑफ पेज नंबर 56 इन 1809 से स्टार्ट करना है और एंड कर देना है सेलुलर टिश्यू इन द थर्ड लाइन. ओके जी. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क डन बाय द टू जर्मन साइंटिस्ट, एक जो है वो बायोलॉजिस्ट था और एक जोलॉजिस्ट था और एक बॉटनिस्ट था. ठीक है, और शेल्डन एंड शिवान. ठीक है, दे प्रपोज द सेल थ्योरी. जी, इन 1838 शेल्डन स्टडीड द प्लांट टिश्यू एंड मेक हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी. ओके. अब ये जो है क्वेश्चन अमूमन इकट्ठा ही आता है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेल थ्योरी की फॉर्मेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो आपको इस तरह भी आ सकता है कि राइट डाउन द वर्क डन बाय द शेल्डन एंड शिवान इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी. ठीक है, तो इसमें फिर आप इन दोनों का कंट्रीब्यूट करके मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा. फिर इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ लाइन एंड एंड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके. और अगर सेपरेट आए तो फिर आप इन जो है वो शेल्डन के जो है फर्स्ट टू लाइन्स हो जाएंगी और शिवान का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. इन 3039 अ जर्मन जोलॉजिस्ट शिवान रिपोर्टेड दैट ऑल द एनिमल्स टिश्यू आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स. ठीक है, तो मैंने आपसे इसमें दो तरह के क्वेश्चन इनके कंबाइन क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया. ठीक है. सो इन 1839 जो शिवान है उन्होंने रिपोर्ट किया था ऑल द एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजुअल सेल. ओके. देन इन 1855 राइट क्वेश्चन वर्क राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विर्को इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी. ठीक है, या इसमें ये क्वेश्चन में था हु एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी. जी, in 1885 a German physician Virchow proposed an important extension of the cell theory. अब क्या इसने प्रपोज किया था? He proposed that all the living cells arise from the pre-existing cell. Means basically it give to the hint of mitosis and meiosis. ठीक है, कि जो मतलब पेरेंट सेल है वही आगे से डॉटर सेल को जो है वो उसकी फॉर्मुलेशन का बेसिकली कॉज है. ओके. अच्छा जी, मतलब जो एक सेल है वो दूसरे सेल से ही अराइज होता है, मतलब जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल से ही अराइज हो रही है. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लुईस पास्चर. ठीक है, इन 1862 लुईस पास्चर प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया. कौन से आइडिया का? ये जो है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके. आपको मैंने क्लास में थ्रू डायग्राम भी ये चीज़ समझाई थी कि किस तरह ये प्रोसेस होता है कि वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल में, फिर डॉटर सेल आगे जब फिर आगे डिवीजन होती है तो वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी. Cell theory is regarded as one of the most fundamental knowledge in the biology and it has the wide regarding effect in all the field of the research. ठीक है. The important postulates of the cell theory of the Sheldon and Shivan will be that 1 2 3 points हैं. ठीक है, after the paragraph number 3. ठीक है. Right question, what are the important points of the cell theory या what are the postulates of the cell theory. Okay, this is your question and the answer of this will be the 1 2 and 3 points on page number 56. Number 1 point, all the organism are composed of one or more cells. ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ठीक है, तो बेसिकली ये बात तो अब मतलब आप लोग अब तक इसको अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के बने हुए, चाहे वो लिविंग मतलब वो वन सिंगल सेल हो या मल्टीपल सेल हो. ठीक है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आपको पता है कि बेसिक
फंक्शनल यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा है, सेल है, ठीक है। सेल्स के बाद फिर आगे आपने इसकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि सेल्स टिश्यूज़, ठीक है, मतलब ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, मतलब हमने आगे इसका सारा तभी बनता है लेकिन फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सेल है। सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, एज वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द क्लास मैनी टाइम। Parent cell give rise to a daughter cell. One parent cell divide and give two daughter cell, and these two daughter cell when divided they will give into 2 and 2 4 daughter cells, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। हाँ, माइटोसिस में सेम करैक्टर जो है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन जो मेयोसिस है वो मतलब जेनेटिक जो है उसमें इनहेरिटेंस के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो तभी आते हैं और वो तब होते हैं जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन माइटोसिस क्या होती है, जब हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही होती है जनरली, मतलब हम जब ग्रो अप कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे कोई मतलब जो कोई सेल रप्चर हो गया तो उसकी ग्रोथ वगैरह होनी है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा वह सारा माइटोसिस का हो रहा होगा, ओके। अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स। According to the first principle of the cell theory, all the organisms are composed of the one or more cell, ठीक है। But अच्छा, इसके ऊपर पहले आप क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। नहीं बस इसके ऊपर नहीं, हम आगे क्वेश्चन लिखेंगे। राइट द करेक्टरिस्टिक्स, सॉरी लिख दें आप क्वेश्चन लाइन नंबर 2 के ऊपर। राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। अच्छा जी, अब वायरसेस जो है ना बेटा वो क्या है कि वो ऐसे वो आप जब नॉन लिविंग थिंग में होते हैं, मतलब जब आप वो एक सेलुलर लिविंग थिंग के अंदर नहीं है, ठीक है, तो जो बाहर है वो इन द क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जिस तरह उससे हमें क्या फीलिंग आती है कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर वो एज अ लिविंग कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए पहले उनको जो है एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो समझा जाता था, लेकिन अब उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे दे कैन इंक्रीज इन द नंबर एंड कैन ट्रांसफर देयर करेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन द 5 किंगडम सिस्टम, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में इनको पहले क्लासीफाई नहीं किया गया, ओके। अच्छा जी, तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसका आंसर है फोर्थ लाइन, दे शो द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे की जगह आपने वायरसेस लिखना है, ठीक है। वायरसेस शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन इंक्रीज इन द नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखें, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स मेक वायरस एज ए सेलुलर पार्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपने लिखना है वायरसेस आर नॉट कंपोज्ड, जो सेकंड लाइन है, ठीक है, वायरसेस आर नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड दैम, ठीक है। बेटा इनका एक सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और ये एक प्रिज्म लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे मतलब इनका जो है वो बाकी सेल ऑर्गेनालिज नहीं है जिस तरह के हमारी बाकी सेल्स की होती हैं, जो हम आगे इंशाल्लाह सारे कंपोनेंट सेल ऑर्गेनालिज की मतलब सेल के आगे सेल ऑर्गेनालिज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन वायरसेस का इससे बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको ए सेलुलर भी मतलब कहा गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, लर्न ऑल दीज टॉपिक डिस्कस in this lecture and write down all the short questions on your biology register and also learn them, okay. I hope you will understand the lecture. If you find any difficulty you will concern with us. Thanks a lot. Allah Hafiz.